Hello student, today's lecture topic is the media management. In this lecture we will discuss on the meaning of the media management, what is the importance of the media management and who is media manager, then the characteristics of the media management, why do we need the social media management. All these content we will include, I will include under this lecture. So first of all I will start with the media management meaning. Media management is an area of business administration that deals with organizing and supervising team of media professional, various mass communication channel and technologies, media and entertainment production and more. Then the next is the why is media management important. आखिर मीडिया मैनेजमेंट की आवश्यकता या इसकी ज़रूरत क्यों है. The importance of the social media management updated on social media managers help their organization capitalize on the surging popularity of social media platforms by creating and overseeing engagement, branding and marketing campaigns. Brand loyalty is equally crucial. यहाँ पे बात आती है मीडिया मैनेजमेंट की. तो मीडिया मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है. तो मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू एक चैनल डेवलप करता है कोई भी मीडिया मैनेजर, जिसके माध्यम से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट कर सकता है या कैसे अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, किस तरह की स्ट्रैटेजी बना सकता है, मार्केट के जो अपडेट्स हैं उसको किस तरह से वो पाकर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को वो मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू निकाल के अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करता है और कहीं ना कहीं मार्केट में अपने बिजनेस को सक्सेस दिलाने में मीडिया मैनेजमेंट बहुत अहम भूमिका अदा करता है. देन द नेक्स्ट इज द व्हाई डू वी नीड सोशल मीडिया मैनेजमेंट. सो social media management is very important. The first and perhaps most obvious reason is that customers are active on the social media. Nowadays we are seeing the customer are very active on the social media. They want to see contents from brand like which type of the products are available in the market, what are the prices, what are the category, which type of the brands are available. So all these information available on the social media, and again I am focusing on this point कि customers are more active on the social media, so they will get the all information about the updates. So for this reason social media is very important for the business and make the identity of the business in the market. Then what are the characteristics of the media management. यदि हम इसकी बात करें तो मीडिया मैनेजमेंट के पर्टिकुलरली क्या कैरेक्टर्स होते हैं. देन द मीडिया मैनेजमेंट characteristics are the telecommunication and the other industries, just like creativity and the knowledge. It is the intellectual property, profit orientation, social and public status. All are the characteristics of the social media. यदि हम सोशल मीडिया के लक्षणों की बात करें तो सोशल मीडिया में कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से इसेंशियल फीचर्स होने चाहिए. तो द फर्स्ट इज़ द क्रिएटिविटी एंड द नॉलेज. वहाँ पर सृजनात्मकता और ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा, दिस इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है या पूरी तरह से ये बौद्धिक क्षमता का खेल है. तीसरा है प्रॉफिट ओरिएंटेशन.
ये पूरी तरह से लाभ से प्रेरित होता है। और सोशल एंड द पब्लिक स्टेटस मीन्स सामाजिक और लोक या सार्वजनिक चीज़ों से ये संबंधित होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सोशल मीडिया के लिए इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ये इसेंशियल फीचर्स हैं। यदि ये सारी बातें हैं तभी सोशल मीडिया के थ्रू सक्सेसफुल पाई जा सकती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। द फर्स्ट इज द यू आर इन पार्टनरशिप with all others who are deciding the advertising plan. Then a media plan is an extension of the marketing plan. हमारे मार्केटिंग प्लान को एक्सटेंसिव नेचर प्रोवाइड करता है मीडिया मैनेजमेंट, या मार्केट स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं पर एक लाइन देने में, एक डायरेक्शन देने में मीडिया मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है एडवर्टाइजिंग प्लान। द सेकेंड इज द मीडिया मैनेजमेंट इज द मनी मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट इज मनी मैनेजमेंट। मीडिया रिकमेंडेशंस आर एन इन्वेस्टमेंट इन एन एडवर्टाइजर्स बिजनेस। By making the savviest media decision, you gain the greatest return on the investment. यदि मीडिया मैनेजमेंट का हम प्रॉपरली इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका हम कहीं ना कहीं पर इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हमारी स्ट्रैटेजी को बनाने में, हमारे बिजनेस को एक नया डायरेक्शन देने में, इनोवेशन लाने में, क्रिएशन लाने में, या मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए प्लान करने में हेल्पफुल होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, विनियोग माना जाता है कि कहीं ना कहीं मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट में या जो इन्वेस्ट अमाउंट किया जा रहा है, जिस फंड को हम इन्वेस्ट करके या कैपिटल को इन्वेस्ट करके बिजनेस को रन कराते हैं, उस पर एक अच्छा खासा रिटर्न हमें कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी के थ्रू हो सकता है। और इस स्ट्रैटेजी को बनाने में मीडिया मैनेजमेंट की एक अहम भूमिका होती है। देन द थर्ड इज द इन्वॉल्वमेंट विथ ऑल मीडिया इज अ प्राइमरी रिक्विसाइट्स। Specializing in one medium to the exclusion of others breeds narrow thinking. Consider all the opinions. Never look for the expeditious solution simply to save time. यहाँ पे involvement with all media is the primary requisites. इसका मतलब सीधा सा हो गया कि हमें सारे ऑप्शंस को कंसीडर करना है अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय। मार्केट के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को जो हम बनाते हैं या जो प्लान करते हैं, उसके हिसाब से हमें सारे ऑप्शंस को लेकर चलना चाहिए। उसके साथ में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि समय की बचत और एक्स्ट्रावेजेंट ना हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। तो इसके लिए भी मीडिया मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है। नंबर्स डोंट थिंक पीपल डू। द फोर्थ इज द नंबर्स डोंट थिंक पीपल डू। Numbers are a very big part of a media planner's day-to-day activities, but don't rely solely on them to make your decision or argue your case. Use your emotion, your gut and your instinct. And the next is the cost efficiency is important, but not at the cost of advertising effectiveness. एक बिजनेस की बात यदि हम लोग करते हैं तो जो कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, जो लागत होती है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है। लेकिन कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विज्ञापन पर जो हम व्यय कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं,
उस पर कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट पड़े. So you must make sure your customers see and hear the advertising you are placing, even if it cost a few pennies more in one medium than in another. The next is the maintenance is as important as building. It is not enough simply to create a media plan. एक मीडिया प्लान को बनाना इतना को ही बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता है. मीडिया प्लान में बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं. All plans must be monitored after they are implemented to ensure that schedules are followed, positioning is optimal and reproduction is acceptable. It means सिर्फ मीडिया प्लान को बनाना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसके मेंटेनेंस या इसको मेंटेन करके रखना भी ज़रूरी होता है. तो मीडिया मैनेजमेंट का एक सिद्धांत ये भी है कि सिर्फ मीडिया प्लान को क्रिएट करना ही सब कुछ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन प्लान्स को मॉनिटर भी करना चाहिए. इस पर निगरानी भी रखना चाहिए कि आफ्टर दे आर इम्प्लीमेंटेड, कि मीडिया प्लान जो हमने बनाया, जिस स्ट्रैटेजी को हमने बनाया, यदि वो स्ट्रैटेजी हमने इम्प्लीमेंट की है तो क्या जिस हिसाब से जिस मेथड को या जिस टेक्निक को हमने इम्प्लीमेंट किया है वो फॉलो की जा रही हैं या नहीं. साथ ही साथ में ये भी देखना होगा कि जिस पर्टिकुलर पार्ट को या जिस पर्टिकुलर कंटेंट को हमने अपने प्लान में इंक्लूड किया है वो कंटेंट फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं. तो मीडिया मैनेजमेंट का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि मेंटेनेंस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज बिल्डिंग. ये सिर्फ बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसको मेंटेन भी करके रखना ज़रूरी होता है. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ द एवरीवन शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड. Endeavor to keep your partners informed about media issues and changing dynamics. ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सिनेरियो चेंज हो रहा है या जो मार्केट में चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस इन्फॉर्म करने चाहिए. The more everyone know, the better their understanding and appreciation of your media recommendations. आप इसको अपने एंटरप्रेन्योर या आप पॉलिसी मेकर के सामने रखना चाहिए, जिससे और भी स्ट्रॉन्ग और भी कॉन्क्रीट हम अपने मीडिया प्लान को बना सकें. द नेक्स्ट इज़ द कीप योर डोर ओपन टू मीडिया सप्लायर्स. हमेशा सारे रास्ते खुले रखने चाहिए. मीडिया सेल्स पीपल्स ऑफन नो मोर अबाउट देयर स्पेसिफिक मीडियम दैन यू. हमारे से कहीं ज़्यादा वो लोग जानते हैं जो मार्केट में हमेशा रन कर रहे हैं या एक एजेंट के फॉर्म में काम करते हैं. उनसे जो भी हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं उसको कलेक्ट करना और उसके थ्रू अपने मीडिया प्लान को बनाना, ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग, एक कॉन्क्रीट मीडिया प्लान को क्रिएट कर सकता है. देन नेक्स्ट इज द कंट्रीब्यूट बियॉन्ड मीडिया प्लानिंग. एज अ मीडिया प्लानर, the greatest contribution will be in media planning and buying. But we should not be inhibited about recommending marketing, creative, promotional or new product ideas that can build an advertiser business. The last is the work hard. It is a very important
principle of the media management: do hard work. Without hard work, we never achieve our goals. So, to fulfill our dreams, or if we want to successful in market, so it is very important we have to more emphasized on the hard work. These are the principles of the media management. So let me move ahead with the next part: scope of media management, nature of the media management, government policy and growth profile of Indian media. Then we are well know that there are mainly two types of media: print media and the electronic media. Earlier only radio, newspaper and journals etc. were the main source of information for the society at large. पहले समय में प्रिंट मीडिया और यदि हम बात कहें तो पुराने समय में सिर्फ रेडियो, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स होते थे, जिससे कहीं ना कहीं पर वो सूचनाएं, वो इंफॉर्मेशन ली जाती थी जो समाज के बारे में बताती हैं. बट नाउ era is changed, and nowadays we are calling the era of the electronic media. Now electronic media is progressing well in the country, so nature and the scope of media are also changing. In present day scenario, media has its own role in the social and economic development of country. यदि देखा जाए तो आज के समय में मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो रोल है बहुत बढ़ चुका है. दोनों ही कंस्ट्रक्ट में बढ़ चुका है, चाहे वो आपका सोशल मैटर्स हो, सोशल इश्यूज़ हों या वो इकोनॉमिक इश्यूज़ हों. दोनों ही सिनेरियो में, दोनों ही कंस्ट्रक्ट में मीडिया की इम्पोर्टेंस, मीडिया का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है. सामाजिक गतिविधियां हों, चाहे आर्थिक गतिविधियां हों, चाहे सामाजिक विकास की हम बात करें या आर्थिक विकास की बात करें, दोनों ही कंडीशन में मीडिया का जो रोल है, इसकी जो भूमिका है, वो पहले से ज़्यादा अहम हो चुकी है. देन डेवलपमेंट इज अ मल्टीफेसेट प्रोग्राम. Media should try to focus on the important economic and social issues like the level of economic growth, level of education, level of health services, degree of modernization, status of women's, level of nutrition, distribution of goods and services, and access to communication. As per the changing of the time, मीडिया का जो फोकसिंग एरिया है वो भी, जैसे मैंने अभी कहा, बदल चुका है. पहले हम सिर्फ जनरल्स हमारे पास होते थे, न्यूज़पेपर्स होते थे, रेडियो होता था जिससे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती थी. लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके एक्टिव होने के कारण, मोर एक्टिव होने के कारण इसका स्कोप या इसका जो क्षेत्र है वो पहले से काफ़ी कम्प्रिहेंसिव हो चुका है. अब इसकी स्कोप में इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ सोशल इश्यूज़ भी हैं, जैसे द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि का स्तर, लेवल ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का, उसके साथ ही साथ में डिग्री ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का क्या स्तर है, स्टेटस ऑफ द वुमेन्स, महिलाओं की क्या स्थितियां हैं, लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन, उनके पोषण से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज,
जो उत्पाद हैं, वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनका वितरण क्या है, और एक्सेस टू कम्युनिकेशन, संवहन किस तरह से किया जा सकता है, या हाउ कैन वी गेट द इंफॉर्मेशंस. Then reporting of social and economic issues in time, opinion analysis, awareness program, developing and advocating suggestive framework, etc. ऐसे आज के देखा जाए तो और भी काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड किया जा चुका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. इंडियन कंटेक्स्ट में मीडिया जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. So in India, media plays an important role in affecting the mindset of the people. People watch television and they tend to adopt many things which they see on the television. आजकल लोग टीवी देखते हैं और टीवी पे जो भी उन्हें सूचनाएं मिलती हैं या जो भी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं या जो कुछ भी वो देखते हैं, चाहे एडवर्टीजमेंट में हो या सोशल सेक्टर में हो या इकोनॉमिक फील्ड में हो, वो उसी से रिलेटेड चीज़ों को करते हैं. इफ़ दिस इज़ यूज्ड फॉर बेनिफिशियल पर्पस, इट कुड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द पीपल एंड देयर बाय ऑन द सोशल सिस्टम. यदि ये यूज़फुल है तो कहीं ना कहीं हमारे सोशल सिस्टम को भी, हमारे सामाजिक प्रणाली को भी प्रभावित करता है. सो media is responsible for the coverage of India's growth in the all aspects. The role of media cannot therefore be denied in the growth of the nation. So अब हम ये नहीं कह सकते, we never say that कि there is no role of the media. Nowadays we are seeing the role of the media. We never denied in the growth of the nation. It is very essential for the growth of the nations. The next is what is the nature of the media management. मीडिया मैनेजमेंट के प्रकृति के बारे में अब हम लोग बात करेंगे. मीडिया मैनेजमेंट इज अ टर्म यूज्ड फॉर सेवरल रिलेटेड टास्क थ्रू आउट पोस्ट प्रोडक्शन. In general, any task that relates to processing of media is considered to be media management, such as capturing, compressing, copying, moving or deleting media files. However, media management also refers to keeping track of media files via clip properties such as log notes, comments, scene numbers, short take numbers, etc. So thus the media management deals with procedure, mechanism of reporting in an effective and viable. इसको मूर्त रूप पे मीडिया मैनेजमेंट इसको डील करता है. या मीडिया मैनेजमेंट के यदि हम प्रकृति की बात करें तो जितने भी सोशल चेंजेस हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हों या सोशल ग्रोथ से रिलेटेड हों या सोशल मैटर्स हों या ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड मैटर हों, इन सब को बहुत इफ़ेक्टिवली और प्रॉपर वे में मीडिया मैनेजमेंट प्रेजेंट करता है. देन नेक्स्ट इज़ द व्हाट इज़ द नीड फॉर द मीडिया मैनेजमेंट. We need media management on the following grounds. The first is to report the policy and programs of the government in the interest of the society. समाज के लिए जो सरकार योजनाएं बनाती हैं या जो प्रोग्राम्स बनाती हैं, उनको लोगों की नज़र में लाना या लोगों के सामने लाना. दूसरा, to ensure and inculcate ethical values in media system. The second is to ensure and inculcate ethical values in media system. The third is to broad base the coverage of different types of media. And the fourth, to professionalize the media system in proper perspective. The next is the
to serve the public interest by focusing on the issues affecting the society at large. So these are these particularly facts in favor to need media management. The first is to report the policy and programs of the government in the interest of the society, to ensure ethical values in media system, to broadcast the coverage of different types of the media, to professionalize the media system in proper perspective, and the last is that to serve the public interest by focusing on issues affecting the society at large. पहली जो मैंने बात कही कि समाज के लिए जो सरकार या सोसाइटी के इंटरेस्ट में, उनके हित में सरकार जो पॉलिसीज़ को बनाती है, जिन प्रोग्राम्स को बनाती हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसके लिए मीडिया सिस्टम लोगों में अवेयरनेस लाता है, उसके लिए इंश्योर करता है। तीसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया को भी जो ब्रॉड बेस्ड हैं इनको भी कवरेज करता है। चौथा है किसी भी मैटर को एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में प्रेजेंट करता है और उन इश्यूज़ को कंसीडर करता है या फोकस करता है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। द नेक्स्ट इज़ द scope of media management. We have discussed, but I want to repeat it once again. The first is regulatory frame of the media. The second, compliance of ethical values in reporting. Third, reporting of issues affecting society at large. Developing base for professionalization of print and electronic media, maintaining high standard of objectivity in criticism of government and other authorities, developing process and procedures for reporting, developing and implementing control mechanism for media operations. These are the scope of media management, or these are the few facts in favor of the need of media management. The next part of this lecture I will include media structure. Media structure includes newspaper, news agencies, magazines, journals, radio, television, etc. The Indian media sector is quite diverse, unlike that in the most other developing or the emerging economies. It has 398 daily newspapers, 98 more that appear at the fixed intervals, 562 TV stations, 312 radio stations, and 39.2 million cable TV subscribers. Then the next part of the lecture is the government policy and media. Here we will discuss on the salient features of government policy with regards to media. The first is the publication of Indian edition of foreign scientific, technical and specialty magazines, periodicals, journals and foreign investment up to 100% in Indian entities publishing scientific, technical and specialty magazine, periodical, journals.